welcome back to my channel. I hope all of you are doing absolutely fine. So title से पता चली गया है, today we are moving. I think in this past month I have moved 3 times. I have packed my and unpacked my stuff 3 times. This is the 3rd time I'm moving, but उसके बारे में बात करते हैं. So let's go. काफ़ी पैकिंग कर ली है. This is where I used to sleep. I didn't have a mattress yet because for a month I was sleeping without a mattress. When I moved here, I knew that I had only 2 months here. So before getting comfortable here, I thought why not just find somewhere else already. And so that's what I did. So that's why I didn't buy a mattress. I had a good deal on mattress, but मैंने सोचा नहीं यार रहने देते हैं क्योंकि मेरे पास I don't have a car here. So अगर मैट्रेस मैंने ले ली तो मुझे उठाना और सामान के साथ बहुत मुश्किल हो जाएगी. So मैंने सोचा कि इस महीने ऐसे ही सो जाते हैं. Next महीने because the place where I'm going now, it includes mattress and furniture, so it's kind of furnished. So yeah, that's a good thing. So this is where I used to sleep. Yep. This is my closet. I mean this was my closet now. So थोड़ा बहुत सामान unpack करना रह गया. Sorry, pack करना रह गया. And most of it is done. This is my roommates. He sleeps here. So right now I'm living in a shared space. But now I got a private room, so I have the whole room to myself now. So that's a good thing. And let me also give you some few tips before coming to Canada, ki what to pack and what not to pack, what I did and what I felt like what I should have done. So let's dive in. Welcome to my humble abode. This is how the room looks right now. Kind of messy, like pretty messy. But let's set it up. Check it out. रूम तो ऑलमोस्ट सेट हो गया है बट वी नीड सम ग्रोसरीज. मैं सब कुछ ख़त्म करके आया था वहाँ, तो आई नीड बेसिक थिंग्स अगेन. सो वी आर गोइंग टू गेट सम ग्रोसरीज नाउ. लेट्स गो. Okay, so let's talk about what to pack and what not to pack when coming to Canada. So the first thing is clothes, right? Like summer clothes or winter clothes की क्या लेके आनी चाहिए, कौन सा ज़्यादा लाने चाहिए. It totally depends on your intake actually. मैं आया हूँ मई इंटेक में, so अभी गर्मियाँ आने वाली हैं. So people say कि मई में अगर तुम आ रहे हो तो you should bring more summer clothes and not any like many winter clothes. So that जो मुझे लगा है कि आपको थोड़े विंटर क्लोथ लाने चाहिए, मतलब नॉट हैवी जैकेट्स, जस्ट सम हुडीज, बिकॉज व्हेन आई अराइव्ड it was really cold for me. It was biting cold for me. But my friends, they were like कि भाई कुछ भी, हमें तो बहुत गर्मी लग रही है, but not for me bro, they were used to it. बट हमें जब मैं आया था तो मुझे बहुत ठंड लग रही शुरू के दिनों में, तो अच्छा हुआ मैं थोड़ी हुडीज़ वगैरह लेके आया था. बट स्टिल मैंने यहाँ आके लेनी पड़ी मुझे, क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी काफ़ी.
सो बट अब काफ़ी गर्मी हो रही है यहाँ पे, तो अभी क्योंकि गर्मी के कपड़े मैं लेके आया था तो इट्स बेटर कि आप भी थोड़े गर्मी के कपड़े ज़्यादा लाओ अगर इफ़ यू आर कमिंग इन मे. बट इफ़ यू आर कमिंग इन लाइक fall and Jan, तो definitely bring some winter clothes. If you're coming in Jan, then definitely bring your winter clothes, I think, because अगर आप यहाँ के सोच रहे हो लेने वाले, when you leave the airport you will feel the cold man. and यहाँ पर घर से अपने कोई विंटर जैकेट में खरीद के आना, यहाँ से आके लेना, क्योंकि यहाँ की विंटर ऑफ कोर्स इंडिया से बहुत ज़्यादा हार्श है. सो यू विल सी द डिफरेंस कि वो विंटर जैकेट यहाँ कहते कि मैंने अभी तक ली नहीं है, बट मैंने सुना कि इट विल बी रियली हेल्पफुल एंड बिल्कुल भी पता नहीं चलता है बाहर ठंड का जब तक वो पहनी होती है, मतलब काफ़ी हेल्प करती है वो. तो वहाँ से मतलब ना यहाँ से लेना, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर सस्ती मिलेगी तरह से, क्योंकि आप यहाँ की विंटर के अकॉर्डिंग होगी वो. एंड फॉर समर क्लोथ्स जस्ट ब्रिंग वट एवर यू लाइक, मतलब नॉट टू मच कि शुरू में आपका काफ़ी इजीली चले, और जो आपको बहुत पसंद है, जैसे मेरी ये टी शर्ट बहुत पसंद है मुझे या फिर शर्ट, तो वो लेके आना. एंड बट नॉट टू मच, तो यहाँ आके आप बाय कर सकते हो. अगर आपको मतलब स्पेस कम पड़ रहा है बैग में, देन यू शुड अवॉइड टू मच क्लॉथ्स. सो द नेक्स्ट थिंग वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, राइट? लैपटॉप्स, योर फोन्स, एयरपोर्ट्स, कि भाई हम कनाडा जा रहे हैं, नया नया सामान लेकर जाएंगे, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ आके लेना. यहाँ पर सस्ता है ऑफकोर्स. इंडिया से अगर आप नया लैपटॉप, नया फ़ोन लेने की सोचो तो प्लीज़ मत लेना, यहाँ पर सस्ते मिलेंगे. अगर आपको नया फ़ोन लेना है तो आप नया सिम लेने जाओगे तो उसके साथ आप नया फ़ोन, मतलब ऑफर्स होते हैं यहाँ पे, तो आपको ज़ीरो डाउन पे यहाँ पे फ़ोन मिल जाएगा सिम के साथ. सो दैट्स अ बेटर डील एंड स्टिल चीपर देन इंडिया. सो या यू कैन गो फॉर दैट. बट इंडिया से नया मत लेके आना, यहाँ आकर ही लेना, दैट विल बी द बेस्ट. सो फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. नेक्स्ट इज यूटेंसिल्स. कितने बर्तन लाने, क्या क्या लाने हैं, कुकर भी लाना है कि नहीं. मम्मी कह रही कुकर लेके जा भाई, सही कह रही है जब, क्योंकि बट मैंने जो यहाँ देखा है कुकर यहाँ हर जगह मिल रहे हैं, बट वो छोटे मिल रहे हैं. जैसे इंडिया के बड़े कुकर होते हैं ना हमारे, वैसा नहीं मिला मुझे अभी तक कहीं पे. सो अगर आप प्लान कर रहे हो कि आप ग्रुप में रहने वाले या फिर ज़्यादा कुकिंग करने वाले हैं, अभी तो घर से लेके आना, वरना आपका काम तो चल ही जाएगा यहाँ पे. क्योंकि बेसिक यूटेंसिल्स में आपको एक चम्मच, प्लेट्स, ग्लासेस, बहुत सारे मतलब ना एक एक लेके आना, ताकि जब आप इनिशियली में आओ देन इट रियली हेल्प्स यू, बिकॉज जाते ही आप किसी से मांगने के वाले होंगे. एंड ग्रोसरीज भी जाना, सपोज अगर आपको आपके घर से दूर है, नहीं जा पा रहे तो क्या करोगे, राइट? सो इनिशियल डेज के लिए ये काफ़ी हेल्प करेंगे. तो ये चीज़ें लेके आना साथ में, जो बेसिक है. कुकर ले आना, कढ़ाई भी बेशक मत लाना, यहाँ पे सेम मिलती हैं, बट अगर आपके पास ऑलरेडी है घर पे एक्स्ट्रा पड़ी है तो ले आना, नहीं मत लाना. कढ़ाई, फ्राइंग पैन, ये सब, क्योंकि यहाँ पर गैस बेस्ड नहीं होता है. अगर आप गैस बेस्ड तवे या फिर वो लेके आओगे तो चलेंगे नहीं यहाँ पे. तो घर से वही लाना अगर आपके पास है एक्स्ट्रा, वरना यहाँ आके ख़रीदना. घर से कुकर ला सकते हो अगर आपको कुकिंग करनी है, और पर बेसिक यूटेंसिल्स लेके आना अपने, जो रोज़ के लिए चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शुरू में ज़रूरत पड़ेगी उनकी, तो वो पक्का लेके आना. मेडिसिन कितनी लानी चाहिए, वहाँ पे मिलती हैं कि नहीं, सब मिलता है यहाँ भी ऑफ कोर्स, बट अगर आप घर से लेके आओगे देन देयर इज़ नो हार्म, राइट? वहाँ पर सस्ती मिलती है, ईजिली अवेलेबल है. यहाँ पर सब कुछ प्रिस्क्रिप्शन पे मिलता है. अगर आपको, मैंने सुना है यहाँ पर अगर आप थोड़ा ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है तो आप जाके सीधा बोल नहीं सकते हो कि मुझे एंटीबायोटिक्स चाहिए जी, वो नहीं देंगे ऐसे. आपको प्रिस्क्रिप्शन ही चाहिए, और आपको फिर प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए टाइम लगेगा, और आपकी कंडीशन वैसी नहीं है तो मतलब इट कुड गेट वर्स. सो घर से मैं अपनी घर से एक पैक लेके आया था जो अभी दिखाने वाला आपको. उसमें सब था, मतलब पैरासीटामोल हेडेक्स के लिए, स्टमक एक के लिए, लूज मोशन के लिए, वॉमिटिंग के लिए, सारी दवाई लेके आया था मैं केमिस्ट से. और उसका प्रिस्क्रिप्शन भी लिखवा के लेके आया था. आप भी लिखवा के लाना प्रिस्क्रिप्शन, बिकॉज आपको वहाँ इमिग्रेशन पे पूछ सकते हैं वो. अगर आपको पूछ लिया तो देन इट कुड कॉज ट्रबल. बट मुझसे नहीं पूछा था, बट इट कैन बी आस्क्ड, राइट? सो बेटर सेफ देन सॉरी. सो लेके आना, और ये ज़रूरी है. और क्योंकि किसी की भी कभी भी तबीयत ख़राब हो सकती है, तो और यहाँ पर अगर आप अकेले रह रहे हो तो यहाँ पर कोई हेल्प करने वाला भी नहीं मिलेगा, राइट? अगर किसी के साथ हो तो देन इट्स अनदर स्टोरी, बट अगर अकेले आ रहे हो तो देन यू शुड लुक आउट फॉर योर सेल्फ, कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. तो मेडिसिन बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ लेके आना है. एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ कीप अ पेयर ऑफ
formal shoes and like black pants and black shirt or white shirt would be like a formal attire जो कि इंटरव्यूज में मतलब बोल सकते हैं कि आप पहन के आना, या फिर आई मीन इट इज़ रिक्वायर्ड टू वेयर दैट। और यहाँ पर अगर आप जिस कोर्स में आ रहे हो, यहाँ पर जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कंपलसरी होते हैं सबको, लाइक बिजनेस मैनेजमेंट, करियर प्लानिंग, तो उनमें प्रेजेंटेशंस वगैरह देनी पड़ती है आपको। तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी होगी कि वो बोलेंगे कि अगर आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप कहेंगे कि उस अटायर में बैठना है, बिजनेस अटायर में बैठना है, हम उस एनवायरनमेंट में, ऐसे मतलब समझ रहे हो ना कि तो उसके लिए ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपके पास नहीं है तो मांगते फिरोगे सबसे, और जो आपकी फिर फाइनल प्रेजेंटेशन होगी वो बिल्कुल सूट में होंगी। तो अगर आप ब्लेज़र लाना चाहो तो उसके लिए तो ला सकते हो। में आपको जो बेसिक फॉर्मल अटायर है वो ज़रूर लेके आना, ब्लैक शर्ट और वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट्स और वन पेयर ऑफ फॉर्मल शूज़। दैट वुड बी प्रीटी मच लाइक इट फॉर यू। या इट विल रियली हेल्प इंटरव्यूज़ में एंड क्लासेस में ऑल्सो। एंड अपने चार्जर्स के साथ एक इंटरनेशनल चार्जर लेके आना, जो क्योंकि यहाँ पर पोर्ट्स अलग होते हैं राइट, तो वो वाले यहाँ पे चलेंगे नहीं यहाँ पे, तो वो ज़रूर लेके आना अपने साथ। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। Thanks for watching the video. If you come this far, please like the video and share with your friends and subscribe to my channel also. And thank you for watching. And I'll see you in the next one. And don't worry, guys, you will figure it out.